I don't have a dummy website like no. I can create two views, but I am like no. How do I see? I mean, like where it is going to hit if I test it out. No, no, dummy website you can create, but just need to open our C drive and uh, make just edit the existing Explorer based file. Oh, okay, okay, and then see the Explorer. Okay, okay, Right. got See, it. see the steps that we need to use. The first step, you must need to create at least two different virtual machines, right? And Correct. install internet information services on both machines. Correct. Yeah. अगर हम Yes. यहाँ पे थोड़ा सा इसका प्रीरिक्विजिट की बात करें, सो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट्स. Like in case of prerequisite, you should create at least two different virtual machine, then install internet information services, right? Yes. And configure security group. Like as in case of security group, we must need to add a port number 80 and 443. Port number 80, Correct. which is responsible to manage the traffic over HTTP, and 443, which is responsible to manage the traffic for HTTPS. Correct. Yes. Dummy website, we just need to make a changes in our existing website, which is default internet explorer based file. Then create LB and add the instances. Today I'm going to today's agenda, I'm going to define you two important part, like as it's really important for us, because uh, it's a core component of our Azure AWS solution architect engineers. So basically today's agenda is how to set up AWS WordPress server. This is our first topic. And second, we'll discuss about the concept of Vein stack. Right? So we'll try to understand each and everything with practical. So WordPress server established, how we can establish a WordPress server, and after that we'll discuss about the concept of Vein stack. Is it okay? If you have any question related to previous topic, please let me know. Or we just need to proceed with new topic. Sure. 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 Okay, so let me explain you about the concept and usage of AWS WordPress. So, guys, have you idea about the WordPress? क्या होता है ये? No. Never heard. Okay. As we know that we have a n number of websites are available, right? If we talk One about, thing. So this is also part of compute. yep, we are still on compute panel. Beanstack and WordPress, these all are the part of our compute system. Once we complete the part of compute, we will move ourselves to the storage and then networking, right? So let's talk about the WordPress. So basically अपने पास दो अलग अलग मेथड हैं to configure the website. One with the help of code, or you can say that by using any language, and second without using language, by using the templates and plugins. So we have a two different way to host our website. One using language or template, language or code, and second you can also host your website using templates or plugins. कोड की बात करें, यू नो दैट डॉट नेट की नॉलेज है हमें, पी एच पी, वी नो अबाउट द पी एच पी, वी हैव अ मच आइडिया अबाउट जावा, है ना, वी नो अबाउट द Right. Right. पाइथन. ठीक है. So these all are the languages can help us to design the application, or to design the website. Is it correct? Yes. But think about it. If you correlate it to the database, if you correlate it to the architect, means you are responsible to manage the backup, server, domain, and networking, firewall. So in this case, we don't have idea about these types of languages. और हमें अपनी खुद की वेबसाइट तैयार करनी है. Then CMS come into the picture. Content management system come into the picture, and the best example of CMS is WordPress. ठीक है. So what happened in case of WordPress? WordPress is a type of platform as a services, sorry, software as a services that give us a platform to design our own website. So you can say that create your website
विदाउट एनी लैंग्वेज, ठीक है, विदाउट एनी कोड. हम यहाँ पे कोई कोड नहीं इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल ट्राई टू इस्टेब्लिश आवर ऑन वेबसाइट. इज इट फाइन? प्लीज कंफर्म. Yes. There This- is a couple of on-prem platforms also, right, which help you create all your web pages and also No, no. kind of create Yep. a website and do the connection. Yes, like as a SDK, right? Java, you can install Java on your base machine, install SDK in your machine. Visual Studio can also help you to design your own website, right? So these all are the platform that give us option to create our website, create our application, or design our website. ठीक है? But if you don't know about the languages or coding, so उस केस में क्या होगा? So that time we need to proceed with CMS. CMS Content Management System, जिसमें सारी चीज़ें आपको प्लगइन के थ्रू या फिर टेम्पलेट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी होगी. इज इट फाइन? Yeah. तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वर्डप्रेस के बारे में. ईच एंड एवरीथिंग विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर एवरी पार्ट रिलेटेड टू द वर्डप्रेस एंड आफ्टर दैट विल मूव आवरसेल्फ टू कोडिंग टाइप. कि .NET की वेबसाइट अगर आपको होस्ट करनी है तो उसके लिए क्या स्टेप होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब हम देखेंगे. सो एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट जस्ट वांटेड टू ऐड, वर्ल्ड वाइड इंटायर वर्ल्ड एक अगर हम बात करें 43% वेबसाइट रनिंग ऑन WP, ठीक है ना, एंड रेस्ट ऑफ वेबसाइट अप टू आई थिंक 40% website running with the help of .NET, PHP and Java, and rest of website working running with the help of CMS, like as I hope you heard about the Wix.com. एक वो प्लेटफॉर्म है, एक उनका खुद का वेबसाइट है, उस पर आप टेम्पलेट बना करके अपनी वेबसाइट रन कर सकते हैं. तो जो रिमेनिंग 7-8% या जो रिमेनिंग 17% जो वेबसाइट्स हैं विच इज़ रनिंग विद द हेल्प ऑफ लाइक दैट Wix.com or any template based service. So Wix is also something like a content management system. Yes, it's a core example of content management. But in this case, आपके पास authority नहीं रहती कि आप अपना डेटा खुद से रख सकें. Wix responsible to manage your data. Okay. Wix just works just like a Facebook. कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दो. गॉट इट? बट इन केस ऑफ वर्डप्रेस यू नीड टू परचेज द सर्वर एंड यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वर. कोई भी डेटा मिस होने का चांस अगर है तो वो आपकी गलती से होगा, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहेगा. जब तक आपको वेबसाइट चलाना है आप सर्वर रखिए, वेबसाइट नहीं चलाना है आप सर्वर डिलीट कर दीजिए, किसी को भी बैकएंड में आपके डेटा का एक्सेस नहीं रहेगा. बिक्स के केस में हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते डेटा का कि हमने अपनी तरफ से मेहनत की, डिज़ाइन की, और बैकएंड से कोई भी हमारे डिज़ाइन को कैप्चर कर सकता है, उसका क्लोन बना सकता है या फिर हमारे डेटा या हमारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर कर सकता है. करेक्ट? Cool. So I'm just going to show you the proper step how you can establish a WordPress server with the help of Amazon Web Services. So I'm going to move ourselves to AWS portal. और यहाँ पे हम एक वर्डप्रेस का सर्वर डिज़ाइन करते हैं एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द कि क्या क्या स्टेप हमें इस्तेमाल करना होगा एंड हाउ वर्डप्रेस सर्वर कैन हेल्प अस इन रियल इन्वायरमेंट, रियल प्रोजेक्ट. This work is also a free tier or paid? Yeah, in AWS it also you can say that अगर आप कॉन्फ़िगरेशन 1 कोर CPU 1 GB ऑफ रैम ये इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये फ्री ट्रायल में आएगा. 750 आवर्स पर मंथ आपको मिलेगा, चार्जेस इसमें फ्री रहेगा, चार्जेस फ्री 750 आवर पर मंथ एज पर द लिमिट ऑफ AWS पोर्टल. हमने डिस्कस किया था कि लिमिट की बात करें तो हर महीने आपको 750 आवर्स मिलते हैं, कोई भी इंस्टेंस आप रन कर सकते हैं. करेक्ट? Yes. ओके, सो वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ कंप्यूट सर्विसेज एंड कंप्यूट सर्विसेज में भी हम अभी अपने EC2 डैशबोर्ड पे ही रहेंगे.
सो व्हाट वी नीड टू डू, अगर हमें वर्डप्रेस सर्वर इस्टेब्लिश करना है तो इट्स रियली सिंपल स्टेप. हमें लॉन्च इंस्टेंसेस पे जाना है. आई एम जस्ट गोइंग टू लॉन्च वन इंस्टेंस और इसमें हम वर्डप्रेस की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे. ओके, करेंटली वी डोंट हैव एनी वर्चुअल मशीन इन मुंबई लोकेशन. कोई भी लोड बैलेंसर, कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस, वॉल्यूम, स्नैपशॉट, अच्छा इमेज वगैरह बनाए होंगे पहले. फाइन. सो व्हाट यू नीड टू डू टू क्रिएट अ वर्डप्रेस सर्वर, हमें जस्ट लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना है. एंड दिस टाइम वी नीड टू प्रोसीड विद मार्केट प्लेस. यहाँ पे देखिए आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. माई एम आई, ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस, कम्युनिटी एम आई, फ्री ट्रायल. सो यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ए डब्ल्यू एस मार्केट प्लेस और यहाँ पे आपको टाइप करना है वर्ड प्रेस. जस्ट टाइप द वर्ड प्रेस एंड प्रेस इंटर. We are able to find n number of providers are available, n number of vendors are available, जो ऑप्शन हमें दे रहे हैं कि you can proceed and purchase the server from my site. ठीक है, WordPress certified by Bitnami. ठीक है, multiple vendors are available. So I'm just going to proceed with Bitnami. Select. This is configuration detail. Configuration detail में you are able to find T2 micro, T2 small, medium और हर एक इंस्टेंस टाइप का कॉस्ट यहाँ पे मेंशन हुआ है विच इज़ $0.012. T2 माइक्रो की बात करें तो ये कॉस्ट पड़ेगा. अगर आप फ्री ट्रायल के अलावा इस्तेमाल करते हैं, उससे एडिशनल यूज़ करते हैं तो आपको $0.012 पर आवर के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. हमें सिर्फ टेस्टिंग पर्पज चाहिए तो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद T2 माइक्रो, क्योंकि T2 माइक्रो हमारे फ्री ट्रायल में काउंट होता है. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद T2 माइक्रो. 1 core CPU, 1 gig of RAM. क्लिक नेक्स्ट. हाउ मेनी इंस्टेंसेज यू वांट टू क्रिएट, जाहिर सी बात है एक इंस्टेंस तैयार करना चाहते हैं. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. स्टोरेज 10 GB की हार्ड डिस्क मिलेगी बिकॉज इट कंटेन अ लिनक्स मशीन इन बैक एंड. Next. Port number 22, which is responsible to handle IaaS services. 22 SSH service, HTTP and HTTPS, जिसमें port number 80 and 443. Make it for everyone. Review and launch. It's mandatory. You need to provide the key. तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं WP key and download. लॉन्च इंस्टेंस. सो दिस इज द सर्वर जो हम वर्डप्रेस के लिए परचेज किए हमने. इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी नीड टू डिजाइन द वेबसाइट. दिस इज आवर वर्डप्रेस सर्वर. ठीक है, नॉर्मली इट विल टेक 3 to 4 मिनट टाइम. जैसे नॉर्मल वर्चुअल मशीन या इंस्टेंसेस जो भी टाइम लगता है सेम टाइम इसमें लगेगा टू क्रिएट आवर वर्डप्रेस सर्वर. सेम वे जिस तरीके से हमने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया था, जस्ट लाइक हमें WP के लिए भी सेम प्रोसीजर इस्तेमाल करना पड़ेगा. एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट या कोई क्वेश्चन अभी? ओके, सो लेट्स मूव आवर सेल्फ टू नेक्स्ट टॉपिक. मीन्स जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी हो जाता है ना, वी विल मूव आवर सेल्फ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट. हम इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने का काम करेंगे. एक सवाल है इधर. इन द सिक्योरिटी ग्रुप इट सेज लाइक ना वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय Bitnami and Automatic. That is getting applied by the WordPress? WordPress is a type of service. Bitnami is a kind of organization. No, I'm talking about the security group. Screen पे जो आप security group देख रहे हो ना?
हाँ हाँ उस पे लिखा है कि मतलब WordPress certified by Bitnami and automatic. But that is not we created, right? That security group. नहीं, इट्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय बिटनामी इटसेल्फ. जब हम इंस्टेंस को तैयार करते हैं ना, तो ये जस्ट अ नेम, इट्स अ जस्ट अ नेम ओनली फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि योर सिस्टम, योर वर्डप्रेस सर्वर कंटेन अ वर्डप्रेस मशीन सर्टिफाइड बाय बिटनामी. अच्छा, okay. जब आप विंडोज़ बनाते हैं या लिनक्स बनाते हैं तो उसमें सिक्योरिटी ग्रुप का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है लॉन्च विजार्ड 1, लॉन्च विजार्ड 2, लेट मी वेरीफाई, ऐसे करके आता है. एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, लॉन्च विजार्ड 1 2 3 समथिंग करके. ये दिस वन, लॉन्च विजार्ड 1, लॉन्च विजार्ड 2. लेकिन वर्डप्रेस जब आप तैयार करते हैं इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ एंड लिनक्स. तो यहाँ पे वर्डप्रेस बन के लिख के आएगा कि आपका सिक्योरिटी नेम बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस सर्टिफाइड बाय बिटनामी समथिंग रहेगा. cool. So our instance is ready to use. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी हो गया, मीन्स वी आर एबल टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ आवर वर्डप्रेस सर्वर. पेज को रिफ्रेश करते हैं, रनिंग इंस्टेंस में जाते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिज़ाइन आर वेबसाइट. सो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए आप इस पब्लिक आईपी एड्रेस को कॉपी करिए एंड पेस्ट ऑन एनी ब्राउज़र. यहाँ पे पेस्ट करेंगे, it will redirect you on page of WordPress. This is the WordPress sample page, you can say that. But our responsibility to design our own website. यहाँ पे hello world आ रहा है, something date दिखा रहा है कि आपने कब तैयार किया, user blog something. I want to edit it, I want to design my own website. तो बहुत ही बेसिक सा स्टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा. जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस है उसके पब्लिक आईपी एड्रेस में / लगाएंगे wp-admin. ठीक है, यू जस्ट नीड टू टाइप wp-admin. ये पूरा जो कंप्लीट URL होगा ना, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन लॉगिन पेज ऑफ वर्डप्रेस सर्वर. जो हमारा वर्डप्रेस सर्वर है उसके लॉगिन पेज पे पहुंचाएगा ताकि आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें. प्लीज़ कन्फर्म इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो हम यहाँ पे इंटरप्रेस करते हैं and asking for password and mail ID, user ID and password. So user ID and password दोनों ही हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज से मिल जाएगा. वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो यूज़र नेम होता है यूज़र रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट पासवर्ड के लिए आपको पोर्टल की मदद लेनी पड़ेगी. वी नीड टू capture the password from our AWS portal. So how we can do that? Back to the AWS portal, select your instance virtual machine, एक्शन पे क्लिक करेंगे, इंस्टेंस सेटिंग्स में जाएंगे. इंस्टेंस सेटिंग्स में जा कर के आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है गेट सिस्टम लॉग, राइट? सो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन गेट सिस्टम लॉग. ब्लैक ग्रीन करके एक स्क्रीन आएगी एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द पासवर्ड. तो बहुत ही आसान है पासवर्ड फाइंड करना. आप ड्रैग ड्रॉप करते जाइए. अब देखिए हैश करके एक बॉक्स बना है पूरा. इस बॉक्स में सेटिंग बिटनामी एप्लीकेशन पासवर्ड दिस, द डिफॉल्ट एप्लीकेशन यूजर नेम दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट नीड टू कॉपी द पासवर्ड. दिस इज डिफॉल्ट पासवर्ड बट आप अपने हिसाब से इसको चेंज करेंगे. सो वंस वी लॉग इन वी विल क्रिएट अ मल्टीपल यूजर, मल्टीपल एडमिन, और उसमें क्या पासवर्ड रखना है वो हम डिसाइड करेंगे. बट दिस वन इज द डिफॉल्ट पासवर्ड. इज इट ओके? Yes. कॉपी द पासवर्ड एंड पेस्ट. चलिए लॉग इन करा लेते हैं. राइट नाउ वी आर ऑन पेज ऑफ WP dashboard. This is our WordPress dashboard. N number of options are available: dashboard, update, post, media, pages, plugins, users, tools, settings. N number of options are available. But as a Azure administrator, as a AWS administrator, it's our responsibility. जब भी आप WordPress के सर्वर को लॉगिन करेंगे, पहला जो important part होगा, you must need to create more than one user because this is our default user and now you need to create new user. Just click add, type the name of your user, like I'm going to proceed with name of GCP. This is our username. Provide any mail ID
जस्ट नीड टू प्रोवाइड एनी मेल आईडी. डिस्प्ले नेम, फर्स्ट नेम हमारा डिस्प्ले नेम होगा, GCP ही रखना चाहते हैं. I don't want to use last name and I want to create my own password. Generate में default रहेगा. I want to create my own password. cloud@1234. What you want to make? Do you want to make subscriber, contributor, author, editor, or administrator? So I'm going to make it administrator. So what do you think about these points? ये जो अलग अलग category है users की, what do you think about these means categories of our user? Author is somebody who will create the first time. Contribute, editor, and contributor looks same. Subscriber will be view only, right? I think. Means limited access. Correct. What about editor? Editor will have ability to make changes based on the access on certain areas. Right. So because what happen ना, जब भी हम किसी वेबसाइट की बात करते हैं, स्पेशली वर्डप्रेस सर्वर की बात करते हैं ना, तो इन केस ऑफ वर्डप्रेस सर्वर यू नो दैट मल्टीपल पीपल कैन परफॉर्म टास्क टू डिज़ाइन आवर वेबसाइट. एक ही वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए मल्टीपल इंजीनियर्स को हमें अपना डैशबोर्ड शेयर करना होता है. एंड यू नीड टू डिवाइड द टास्क लाइक एज ABC को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि कुड यू प्लीज़ डिज़ाइन द पोस्ट फॉर माई वेबसाइट. XYG को आपने ऑथराइज कर दिया कि कुड यू प्लीज़ कॉन्फ़िगर वन पेमेंट गेटवे इन माई वेबसाइट, तो उसका टास्क अलग हो जाएगा. तीसरे को हमने कुछ और ऑथराइज कर दिया, डेलीगेट कर दिया, परमिशंस दे दी कि आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो. सो एज इट इज़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर एडमिन, यू आर ऑनर ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वर, क्योंकि आपके पास रूट का एक्सेस है. एंड यू आर ऑथराइज पर्सन टू हैंडल द सर्वर फ्रॉम बैक एंड. बाकी बंदों को केवल ये डैशबोर्ड मिलेगा, आपके पास इसका सर्वर का एक्सेस मिलेगा. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ मल्टीपल यूज़र अकॉर्डिंग टू द यूसेज ऑफ आवर यूज़र. जो आप परमिशंस देना चाहते हैं अपने यूज़र्स को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑथराइज कर सकते हो. एडिटर बनाना, ऑथर बनाना, कॉन्ट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर. तो अभी यहाँ पे हम एडमिन बना देते हैं, क्योंकि हम एडमिन से यूज़ करेंगे. इन केस अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम एडमिन यानी GCP यूज़र नेम और पासवर्ड cloud@123 के थ्रू लॉगिन कर पाएंगे. बोथ आर एडमिनिस्ट्रेटर. आप लोकल पे जा सकते हैं. दिस वन इज़ डिफ़ॉल्ट एंड ये हमने अपनी तरफ से क्रिएट किया है. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू मेक ए स्मॉल पोस्ट. यहाँ पे पोस्ट पे जाते हैं. हेलो वर्ड पहले से है, डिफ़ॉल्ट है. आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द एग्जिस्टिंग पोस्ट. क्लिक ऐड. एंड दिस इज़ द पैनल जहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करेंगे. AWS ऑनलाइन ट्रेनिंग. ठीक है, यहाँ कुछ भी मेंशन कर दिया. AWS क्लास पब्लिश. ठीक है. अब अगर हम इसके पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करते हैं, अपने इस इंस्टेंस के पब्लिक IP एड्रेस को कॉपी करते हैं, किसी दूसरे ब्राउज़र पे पेस्ट करते हैं, तो जो चेंजेस आपने किया है ना, वो चेंजेस आपका यहाँ पे दिखने लगा है. इज इट ओके? ठीक है. अब एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइन द वेबसाइट. हम यहाँ पे वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं करेंगे, राइट? बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पेज को, इस डैशबोर्ड को ना, इस डैशबोर्ड को हम शेयर कर देंगे उस टीम के साथ जो टीम हमने हायर की है टू डिज़ाइन एप्लीकेशन और डिज़ाइन अ वेबसाइट. जो वेबसाइट के लिए हमने एक प्रॉपर टीम हायर की है, जिसको मीन्स अच्छा खासा आइडिया है वर्डप्रेस के बारे में, उनको हम ये पर्टिकुलर वेबसाइट शेयर कर देंगे विद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड. ये पब्लिक IP एड्रेस और यूज़र आईडी एंड पासवर्ड को शेयर कर देंगे. इज इट ओके? ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर होस्टिंग अ वेबसाइट थ्रू CMS बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी लैंग्वेज या किसी भी कोड का इस्तेमाल नहीं किया, राइट? वी जस्ट क्रिएटेड आवर वेबसाइट विदाउट कोडिंग. यहाँ पे हमने कोई कोड का इस्तेमाल नहीं किया. इज इट क्लियर?
ठीक है. सो एक तो ये स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू शेयर, हाउ टू डिज़ाइन, हाउ टू होस्ट अ वेबसाइट, हाउ टू होस्ट, हाउ टू होस्ट अ डॉट नेट बेस्ड वेबसाइट या PHP बेस्ड वेबसाइट या जावा बेस्ड वेबसाइट को हम किस तरीके से होस्ट करते हैं. इट्स अ टोटली डिफरेंट. लाइक I have already downloaded one dummy website. This is the website which is created through a .NET. ये मैंने डाउनलोड कर रखा है. एक डमी है वेबसाइट है. लेट मी चेक कि इसको वर्ल्ड वाइड कैसे हो. Just one question. या मुझे एक क्वेश्चन, वर्डप्रेस के हिसाब से if you are making one website, right? हाँ हाँ And let's say that we will give a name, मतलब IP address के जगह पे we'll name. give a proper website name. वो website name, if we Google it, will we how do we enable it to hit that website? Okay, okay, We okay. need to know the Understood. This is our WP server, right? And currently we are accessing our website through the public IP address. correct. इसकी हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिली. हम इस पब्लिक आईपी एड्रेस के थ्रू वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं, राइट? Correct. बट वी वांट टू अटैच, वी वांट टू यूज एंड होस्ट आवर वेबसाइट थ्रू अ पर्टिकुलर नेम. आप कह रहे हैं कि एक नेम से चाहिए हमारा, ठीक है? सो इन दिस केस दो सर्विसेज आपको और ऐड करनी पड़ेगी. एक तो लोड बैलेंसर, दूसरा एक सर्विस होती है राउट 53 के नाम से, ठीक है? एंड तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, ठीक है? डोमेन कहाँ से परचेज करेंगे? मल्टीपल प्रोवाइडर्स हैं. सो उस डोमेन को आप अपने अपने रूट 53 को इन्फॉर्म करोगे कि दिस इज माई डोमेन, दिस इज माई डोमेन दैट आई परचेज फ्रॉम godaddy.com. एंड ये राउट 53 क्या करेगा? उसको अप्रूवल देगा थ्रू DNS रिकेट. DNS रिकेट के जरिए ये आपके डोमेन नेम को अप्रूवल देगा. नो वरी अबाउट इट. इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल है. आई हैव ऑलरेडी परचेज मल्टीपल डोमेन. ठीक है? सो like that, teachmecloud.in, cloudkaksa.in, glucreation.com, these all are the domain. वर्ल्ड वाइड अब इस नेम को कोई परचेज नहीं कर सकता है. इज इट करेक्ट? क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है और इसका आपको एक तरीके से यू कैन से दैट सब्सक्रिप्शन पे करना होता है. ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है. हर साल हमें इसको डोमेन को रिन्यू कराना पड़ेगा. इज इट करेक्ट? Yes, मुझे उधर ही एक one more question, like ये जो आप बोल रहे हैं ना cloudkaksha.in, हाँ हाँ ये अगर if somebody else want to create something like cloudkaksha.com, हाँ. is it possible? यस, .com, .in, .com. आप डोमेन चेंज करेंगे डेफिनेटली. अगर अवेलेबल होगा तो मिल जाएगा हमें. अच्छा, मतलब okay, the whole name has to be unique. Okay. सॉरी, एक बार फिर से रिपीट करिए. No, what I was saying was the पूरा का पूरा नाम unique रहना चाहिए. हाँ पूरा. cloudkaksha.in और नहीं. cloudkaksha.com are two different things. आप डोमेन चेंज कर रहे हैं तो नेम सेम हो सकता है. अगर cloudkaksa.in हमने परचेज कर लिया और आप प्लान कर रहे हो cloudkaksa.com परचेज करने के, तो आप परचेज कर सकते हैं अगर अवेलेबल है तो. अच्छा, got it. Got it, समझ गया. है ना? ओके. सो ओके, ठीक है. सो राइट नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अगर हम बात करें राउट 53, तो जो राउट 53
का चैप्टर है विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग. वी आर एबल टू डू दैट राइट नाउ, बट थोड़ा सा इसमें चीज़ें क्लियर होने में टाइम लग जाएगा. अब अगर हम यहाँ पे देखें नेटवर्किंग एंड कंटेंट मैनेजमेंट, कंटेंट डिलीवरी, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज़ राउट 53. क्लियर? Yes. इट वर्क जस्ट लाइक अ होस्ट. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होस्ट आर वेबसाइट. जो हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, जो डोमेन हमने परचेज कर रखा है अपने godaddy.com से या किसी भी लोकेशन से, उस डोमेन को ये अप्रूवल प्रोवाइड करेगा. तो काफ़ी मीन्स स्टेप बड़ा है. तो डेफिनेटली विल डिस्कस इन केस ऑफ नेटवर्किंग, बट फॉर नाउ एज ए कंप्यूटर सर्विसेज our responsibility to just complete the first part of our WordPress services. और first part में क्या आएगा? To create a WordPress server. उसमें पासवर्ड कैसे निकालते हैं, यूज़र कैसे बनाते हैं, that's it. इसके अलावा नहीं. Is it fine? Hello. Yes, yes. ठीक है, आगे प्रोसीड कर सकते हैं हम अभी. Yes. ग्रेट. सो नाउ ये तो सी एम एस बेस्ड हुआ. सी एम एस बेस्ड इन द सेंस यू कैन से दैट कि जिसमें हमें किसी लैंग्वेज या किसी कोड की हेल्प नहीं लेनी पड़ी. हमने डायरेक्टली जो है अपने वेबसाइट को होस्ट कर दिया. करेक्ट? नाउ थिंक अबाउट इट कि आपने एक प्रॉपर टीम हायर कर रखी है .NET PHP जावा पे, और टीम ने हमें ये वेबसाइट बना के भेजी बेस्ड ऑन .NET. ये हमारी वेबसाइट है जो .NET पे डिज़ाइन की गई है. अब एज ए AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट इंजीनियर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस .NET की फाइल को या इस .NEट की वेबसाइट को हम वर्ल्ड वाइड कैसे होस्ट करें. इज इट क्लियर? मीन्स इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी. टीम ने क्या किया? टीम ने सिर्फ इतना किया कि हमें वेबसाइट बना करके भेज दिया, राइट? एंड सॉरी, या वेबसाइट का डेटा उठा के दे दिया, एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होस्ट इट वर्ल्ड वाइड. और वो भी AWS पोर्टल के थ्रू हमें होस्ट करनी है. तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट कि कितने मेथड हो सकते हैं इस .NET की वेबसाइट को होस्ट करने के लिए. इज इट क्लियर? Yes. चलो, सो नाउ इलास्टिक बीनस्टैक कम इनटू द पिक्चर, क्योंकि यहाँ पे हम अगला जो स्टेप है, अपनी जो वेबसाइट है .NET की, उस .NET की वेबसाइट को हम होस्ट करने वाले हैं थ्रू इलास्टिक बीनस्टैक. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वी शुड नो ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि थोड़ा सा स्टेप, बहुत ज़्यादा स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ेंगे. सो मेक श्योर कि सारी जितने भी स्टेप्स हैं वो क्लियर होने चाहिए हमारे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्फ़िगर AWS Beanstalk. ठीक है, इलास्टिक बीनस्टैक जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कोई वेबसाइट डिज़ाइन की है तो यू आर एबल टू होस्ट इट. हर तरीके की लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है. सो इन सिंगल वर्ड यू कैन से दैट इलास्टिक बीनस्टैक type of PaaS. What do you think about the PaaS? Platform as a service. Okay, cool. Which is support all types of code or language. इस इलास्टिक बीनस्टैक के थ्रू आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कोड में डिज़ाइन की हुई वेबसाइट को होस्ट कर पाएंगे. .NET हो गया, PHP हो गया, जावा हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, किसी भी लैंग्वेज की जो वेबसाइट है उसको आप आसानी से होस्ट करा सकते हैं. इज इट क्लियर? आई एम गोइंग टू शो यू द प्रॉपर स्टेप कि ये जो टास्क है इसको हम कैसे अचीव करेंगे.
बैक टू द AWS पोर्टल, और AWS पोर्टल दिस इज़ आवर डॉक्यूमेंट डाटा, जो हमारा डेटा है उसको हम एज इट इज़ रखते हैं. ये हमारी डमी वेबसाइट बोल सकते हैं जिसको हमें वर्ल्ड वाइड होस्ट करना है. दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होस्ट इट टू वर्ल्ड वाइड. बैक टू द AWS पोर्टल, एंड AWS पोर्टल में कंप्यूट सर्विस में ही एक छोटा सा ऑप्शन है विच इज़ कंसिडर एज ए बिन स्टैक. बैक टू द AWS पोर्टल, कंप्यूट ऑप्शन पे जाएंगे हम. We are able to find one option, Elastic Beanstalk. Select Elastic Beanstalk. It gives us option to design your platform. Get started with create applications. Click and type the application name. कोई सा भी नाम दे देते हैं यहाँ पे. AWS class 1988. You must need to use a unique name. Provide the tags. So I don't want to use any kind of tag, and which is really important option. Platform. So platform in the sense कि आपकी जो वेबसाइट है वो कौन से कोड में आपने बना रखी है. जावा में है, Node.js में, PHP, Python, Tomcat, Ruby. So I'm going to proceed with .NET on Windows. हम यहाँ पे विंडोज़ सर्वर के थ्रू एक .NET की वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ रिलेटेड टू द प्लेटफॉर्म ब्रांच, मीन्स जिसमें आप सर्वर का सिलेक्शन कर सकते हैं. यू कैन प्रोसीड विद 2019, 2016, 2012. इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं. सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद 2016. प्लेटफॉर्म वर्जन 2.0.1 रिकमेंडेड, ये सबसे बेस्ट माना जाता है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद दैट. सैम्पल एप्लीकेशन, अपलोड योर कोड. सो आई विल अपलोड कोड वंस आवर सर्वर इज़ रेडी. तो अभी हमारा एक सर्वर रेडी नहीं है. जैसे ही हमारा सर्वर रेडी होता है वी विल अपलोड द कोड, जो वेबसाइट है. क्रिएट एप्लीकेशन. Now the Elastic Beanstalk will take up to 10 to 15 मिनट टाइम. ये 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा पूरा प्लेटफॉर्म बैकएंड में तैयार होने में. इज इट ओके? तो एक बार ये प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया तो मतलब वी हैव टू लिंक दिस प्लेटफॉर्म टू आवर इंस्टेंस, राइट? No, it will automatically provide you one instance. यहाँ पे हमें एक इंस्टेंस मिल जाएगा बैकएंड में. तो मतलब हम लोगों का ऑलरेडी कुछ EC2 इंस्टेंस जो चल रहा है उस पे हम लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, इट विल क्रिएट आवर ऑन इंस्टेंस. ये खुद से इंस्टेंस क्रिएट करके देगा जिसमें सारी सर्विसेज रनिंग रहेंगी. अच्छा, ओके. मीन्स नो नीड टू परफॉर्म एनी टास्क बाय सेल्फ. ये जो इंस्टेंस प्रोवाइड करेगा ना उसमें सारी सर्विसेज पहले से चलती रहेंगी. मतलब सिक्योरिटी ग्रुप वो सब चलते A रहेंगे. to Z. तो ये जो अभी सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है उस पे HTTP, HTTPS, ऑल यूजर एक्सेस वो सब बाय डिफॉल्ट होगा या फिर हम लोगों को एडिट करके बताना पड़ेगा? जो हमारा इंस्टेंस तैयार होगा अभी बैकएंड में उसमें सारी चीज़ें रहेंगी. एक तो इंटरनेट इन्फॉर्मेशन सर्विस पहले से इंस्टॉल रहेगी, ठीक है. सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 443, पोर्ट नंबर RDP हमें जोड़ना पड़ेगा. बाकी के पोर्ट हैं वो सभी पोर्ट्स आपके पहले से ही क्रिएटेड रहेंगे, पहले से ही कॉन्फ़िगर रहेंगे.
Okay, so it will take time. So can we take a small break and then connect again? Sure. Okay. So we'll connect in next 15 minutes. Services. Think about it. You are working as a system administrator. You are working as a Azure admin or architect. एंड एक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, आई एम प्लानिंग टू होस्ट अ ई कॉमर्स वेबसाइट. ठीक ठीक है. सो द वेबसाइट विच इज डिजाइंड ओवर अ डॉट नेट. ठीक है, इस लैंग्वेज में डॉट नेट के केस में एक वेबसाइट डिज़ाइन है एंड इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होस्ट दिस वेबसाइट यूजिंग AWS पोर्टल. So we have a two different way to host this website. One is you can say that using infrastructure as a services. दूसरा with the help of platform as a services. So may I know the gap between infrastructure as a services and platform as a services? Any technical difference between each other? Hello. Infrastructure, you will not be able to. I mean, like it is your responsibility to decide on the technology, and I mean, you have to define that. Means we are responsible to perform entire task by self. Correct. Yeah. हर एक टास्क को आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा. सो लाइक दैट वी आर प्लानिंग टू होस्ट अ डॉट नेट वेबसाइट. आप देखिए क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ सकते हैं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे. पहला स्टेप, आप एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, मैनुअल इंस्टेंस तैयार करेंगे. इट मे बी अ विंडोज़ और इट मे बी अ लिनक्स मशीन. ठीक है. एंड सेकेंड स्टेप, इंस्टॉल द सर्विस. अगर आप विंडोज़ पे प्रोसीड करेंगे तो यू मस्ट नीड टू इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. Yes. अगर लिनक्स है तो इस केस में आप अपाचे इंस्टॉल करेंगे. Okay. ग्रेट. थर्ड स्टेप, व्हाट यू नीड टू डू, अपलोड योर डेटा. विच वन? जो वेबसाइट आप प्लान कर रहे हो ना, वेबसाइट डेटा आपको अपलोड करना पड़ेगा. स्टेप नंबर 4, कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर. क्योंकि लोड बैलेंसर अगर आप नहीं तैयार करेंगे तो आप डोमेन को एसोसिएट नहीं कर पाएंगे. कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर. अपलोड वेबसाइट डेटा मतलब क्या एग्जैक्टली? अपलोड वेबसाइट डेटा, जैसे कि हमारे पास ये डेस्कटॉप पे एक डेटा है ना, दिस वन इज आवर वेबसाइट बेसिकली एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड इट. Okay, okay, okay. है ना, ये डेटा हमारे लिए तो डेटा ही हुआ. सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अपलोड द एंटायर फाइल्स. जो भी इसमें फाइल्स है ना, उस फाइल्स को हमें अपने इस सर्वर पे अपलोड करना पड़ेगा. एंड लास्ट स्टेप, ऐड योर डोमेन. ओके, सो ये सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ना रिक्वायर्ड अप टू, अगर हमें अच्छा आइडिया है IIS के बारे में, अपाचे के बारे में, तो फिर भी इट विल टेक अप टू मिनिमम 2 आवर्स. कम से कम 2 घंटे का टाइम लगेगा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के थ्रू वेबसाइट को होस्ट करना चाहते हैं कंप्लीट. बट यहीं पे अगर हम बात करें अपने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज के ज़रिए, तो कुछ भी नहीं करना हमें. क्रिएट इलास्टिक बीन स्टैक, है ना. इस इलास्टिक बीन स्टैक को क्रिएट करते समय ही आपसे पूछ लेगा अबाउट योर प्लेटफॉर्म. तो वहीं पे क्रिएट करते टाइम पे ही हमने डिसाइड कर लिया था, आई एम प्लानिंग टू होस्ट अ वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ डॉट नेट. क्योंकि हमारे पास जो वेबसाइट है ना, वो डॉट नेट में डिज़ाइन की गई है. दैट्स इट. अब अगला स्टेप क्या कहता है? अगले स्टेप में अपलोड योर डेटा. जो हमारा डेटा है डॉट नेट का, उस डेटा को हम अपलोड करेंगे एंड वी आर एबल टू एक्सेस आवर वेबसाइट वर्ल्ड वाइड. तीसरा, कस्टम डोमेन. जो भी डोमेन आपने परचेज कर रखा है वो डोमेन आप एसोसिएट करेंगे
टोटल मिला करके अगर हम बहुत ही आराम से इसको टास्क को परफॉर्म करें तो इट विल टेक हार्डली 30 मिनट्स. यहीं पे मिनिमम 2 आवर्स तो मैंडेटरी है, इतना तो देना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें सारी सर्विसेज आपको IIS नहीं इंस्टॉल करना पड़ रहा है, अपाचे नहीं इंस्टॉल करना पड़ रहा है. इज इट करेक्ट? So one question. यस. Yeah, one question. In the past, this load balancer is created by default, but how many instances? I mean, we need at least 2 instances for a load balancer, right? Is that also taken care by EBS or? ना, इट्स नॉट मैंडेटरी. ठीक है ना, इट्स नॉट मैंडेटरी. ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. Because this is application load balancer, that's the reason. No. Even you can also use a single instance in case of classic load balancer. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि मिनिमम 2 इंस्टेंस हमें रखना ही पड़ेगा. नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तो ये इंस्टेंस में अगर एक ही इंस्टेंस है तो मतलब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लोड बैलेंसर इन दैट केस? Function of load balancer can work just like a mediator. It works just like a mediator. किसके बीच में? राउट 53 के और आपके वेब सर्वर के बीच में जो मीडियम है ना, वो आपका लोड बैलेंसर रिस्पॉन्सिबल है. Is it fine? It's like a connector. Yeah. Like as a connector, yes. Is it clear? Yes. ठीक है. So do one thing. We need to proceed with next step. अभी जो हमने सेटअप बनाया है, अभी जो हमने सेटअप रेडी किया है, उस केस में सब कुछ ओके है, बट हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा है ना, वी मस्ट नीड टू अपलोड आवर ऑन डेटा. जो हमने डेटा अभी, डेटा इन द सेंस कि जो हमने अभी डेस्कटॉप पे देखा है, उस डेस्कटॉप का डेटा हमें अपलोड करना पड़ेगा Right. ताकि हम वर्ल्ड वाइड चीज़ों को एक्सेस कर सकें. सो हाउ वी कैन डू दैट, वी शुड नो अबाउट द वे. तो बेसिकली लेट मी वेरीफाई कि जो हमारा बीन स्टैक है वो प्रॉपर काम कर रहा है. अब देखिए यहाँ पे एक URL मिल रहा है हमें, राइट? आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द URL और ये हमें होम पेज प्रोवाइड करेगा. एवरीथिंग इज ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने जो सेटअप बनाया है वो सही तरीके से चल रहा है. अब आपकी बारी कि आप इसमें .NET या PHP या जो भी आपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया था वो डेटा अपलोड कर दो. एवरीथिंग इज़ ओके, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है. बस आप अपना डेटा अपलोड करो अगर आप अपनी वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड एक्सेस करना चाहते हैं तो. इज़ इट क्लियर? Yeah. ओके, ठीक है. सो अब जो इंस्टेंस हमने बना रखा है, इंस्टेंस विच इज़ रनिंग ऑन विंडोज़, और एज वी नो वेरी वेल अबाउट, जब भी हम विंडोज़ इंस्टेंस को एक्सेस करते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये हमसे कुछ डिमांड करता है. डिमांड इन द सेंस इट विल आस्क यू टाइप ऑफ की, क्योंकि विदाउट की आई डोंट थिंक वी आर एबल टू एक्सेस द RDP, और RDP एक्सेस नहीं होगा तो हम अपनी वेबसाइट को अपलोड नहीं कर पाएंगे. इज़ इट क्लियर? किसी भी विंडोज़ मशीन का RDP एक्सेस करने के लिए AWS पोर्टल के ऊपर हमें क्या क्रिएट करना रहता है? एटलीस्ट की पेयर तो बनाना पड़ेगा ना. Correct. और की पेयर के ज़रिए जो की पेयर रहता है उसी में हमारा पासवर्ड रहता है, पहला पासवर्ड. उसके बाद आप रीसेट कर दीजिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ऑन द फर्स्ट टाइम यू मस्ट नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड. मतलब कि उस की पेयर को डिक्रिप्ट करने के बाद पासवर्ड आपको देना पड़ेगा. फाइन. सो इसमें क्या करना है आपको, बैक टू द इलास्टिक बीन स्टैक, और इस इलास्टिक बीन स्टैक वाले पैनल पे आकर के क्लिक ऑन इन्वायरमेंट. अंडर द इन्वायरमेंट वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट, it give us option action, and we are able to find load configuration. Wait, we just need to open class AWS class 1988, ये open कर लेते हैं. go to the action, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है हमें which is no manage tag. wait, again need to open.
लोड कॉन्फ़िगरेशन नहीं 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 नहीं, दिस वन इज़ आवर URL. वेट, इलास्टिक बीन स्टैक पे आ जाते हैं. दिस वन इज़ आवर इन्वायरमेंट. एक्शन पे गए, रीबिल्ड इन्वायरमेंट. ठीक है, अभी कुछ ऑप्शन चेंज कर दिए हैं AWS ने, तो वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन रीबिल्ड इन्वायरमेंट. नो 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 नो, वेट, क्योंकि हमें उस इंस्टेंस पे प्रोवाइड करना है उधर अच्छा, वो लॉट कॉन्फ़िगरेशन पे क्या होता है? लोड कॉन्फ़िगरेशन के केस में अगर आपने पहले से कुछ कॉन्फ़िगर करके रखा है, ठीक है, तो आप उस कॉन्फ़िगरेशन को इसके साथ अटैच कर सकते हैं. मतलब सेव कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर सकते हैं. राइट. तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है. इज दैट व्हाट इट इज? लेफ्ट ऑन द पैनल. Okay, yes. In the configuration panel, we are able to make lots of changes like as a software. And यहाँ पे हमें क्या करना है? We just need to manage the instance. Because what happened? अपने instance में we haven't attached the key pairs. जब भी हमने instance create किया था, because it's coming to the picture with elastic bean stack. So what you need to do? आपको एक key pair assign करना पड़ेगा. जस्ट नीड टू ओपन कॉन्फ़िगरेशन विज़ेट, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन है विच इज़ सिक्योरिटी. अंडर द सिक्योरिटी वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन की पेयर्स. EC2 की पेयर, क्लिक एडिट, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग की पेयर है तो आप उसको असाइन कर दीजिए या नया की पेयर डिज़ाइन कर लीजिए. तो हमने अभी रिसेंटली एक की पेयर बनाया था विद नेम ऑफ WP की के नाम से, राइट. वर्डप्रेस के केस में एक की पेयर डिज़ाइन किया था विद नेम ऑफ WP की पेयर. डाउनलोड में जाके इस की पेयर को हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम की पेयर. इसी सेम की पेयर को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने इंस्टेंस के साथ. जस्ट नीड टू क्लिक WP की पेयर and click apply. Your system will restart. So yes, I want to restart it. Confirm कर देते हैं क्योंकि without key pair हम इसको access नहीं कर पाएंगे. So it's mandatory to assign a key pair, और key pair assign करने के बाद you must need to restart the environment. थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट का टाइम, जितना टाइम लगता है एक इंस्टेंस को रीस्टार्ट होने में. और जैसे ये हेल्थी होता है we can proceed and connect our virtual machines RDP, और फिर मैनुअली हम अपना डेटा अपलोड कर देंगे. दिस इज आवर एजेंडा बेसिकली. So let's assume that we are EBS पे हम लोग, let's assume that we are putting like 3 or 4 instances. तो अपलोड चारों इंस्टेंस पे करना चाहिए या फिर मतलब कोई आसान तरीका है जिससे सारे के सारे इंस्टेंस पे वो डेटा आ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, अपडेट की बात कर रहे हैं. डेटा या और द वेबसाइट डेटा. नहीं नहीं, सो टू मैनेज द वेबसाइट डेटा, बेसिकली इसमें क्या करना पड़ेगा? यू मस्ट नीड टू इन्वॉल्व द डेटाबेस, और सारे इंस्टेंस को डेटाबेस के साथ एसोसिएट कर देंगे. करेक्ट, बट अगर 4 इंस्टेंसेस है तो मतलब मुझे चारों इंस्टेंसेस पे अपलोड करना पड़ेगा क्या मैन्युअली? नहीं नहीं, योर इंटायर इंस्टेंसेस मस्ट बी कनेक्टेड विद
जितने भी इंस्टेंसेस हैं वो सभी इंस्टेंसेस कनेक्ट होना चाहिए किससे, आपके सॉरी डेटाबेस से. हाँ बट आई मीन फॉर वेबसाइट लाइक वो डेटाबेस एक चीज़ है, मतलब वो एप्लीकेशन वेबसाइट का जो स्क्रीन्स वगैरह है ना, वो कहाँ मतलब वो जब अपलोड कर रहे हो, शुड आई डू इट, वेयर डू आई डू दैट? अबाउट द वेबसाइट डेटा यू आर टॉकिंग. हाँ वेबसाइट डेटा. See, if I am having like 5 or 6 instances, in this case we are only talking about one instance, correct? करेक्ट. So let's assume that we have 5 instances. Okay, understood. So what happened in this case, you must need to configure and put your entire data in share storage. Okay. इस केस में अगर हम बात करें तो लाइक दैट, हाँ ये क्वेश्चन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल मे बी दिस इज़ आर लोड बैलेंसर को इन्वॉल्व कर लेते हैं एंड वी हैव अ मल्टीपल इंस्टेंसेस. यहाँ पे हमने 3 से 4 इंस्टेंसेस लगा दिए, राइट. एंड लोड बैलेंसर एसोसिएटेड विद योर ऑन डोमेन नेम, जो भी आपका कंपनी नेम है या वेबसाइट नेम है, वो आपने डिसाइड कर दिया. नाउ कस्टमर के लिए तो कंपनी नेम होगा ना, कस्टमर के लिए तो आपका जो बिजनेस नेम होगा लाइक एज कुछ भी amazon.com, flipkart.com, वो आपके सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी कस्टमर के लिए सेम रहेगा. बट यहाँ पे जो अलग अलग सर्वर्स हैं उनको किस तरीके से सेम डेटा पे चेंजेस किया जाए. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट अ शेयर स्टोरेज. और इस शेयर स्टोरेज का कनेक्शन हर एक सर्वर से कर देंगे. जो भी चेंजेस होगा वो यहाँ पे करेंगे. Okay. और वो जो ऑनलाइन सी अगर मुझे एक पांचवा मतलब इंस्टेंस क्रिएट करना है तो आई कैन टेक ए इमेज कॉपी एंड लोड इट इनटू दैट. यस, आपको एक टेम्पलेट बना के रखना पड़ेगा मास्टर कॉपी की, उसी का इस्तेमाल करके आप इंस्टेंसेस बनाएंगे. और जब पैचेस वगैरह आ जाएगा तो मतलब वो मास्टर कॉपी पे अपडेट करके सब जगह पुश करेंगे. बिल्कुल. Then वो shared जो आपका database है, that will be another instance, right? करेक्ट. वो भी मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकता है सर. Yeah. एज पर द रिक्वायरमेंट उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. ऑलमोस्ट रेडी, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ओके है. एंड नाउ वी नीड टू प्रोसीड विद टू अपलोड आवर डेटा. तो अपलोड करने के लिए जो इंस्टेंस है जिसमें आपने की असाइन किया अभी जस्ट रिसेंटली, सबसे पहले तो आप वेरीफाई करिए कि इसके सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट नंबर 80 और 443 अटैच है या नहीं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप ओपन कर लेते हैं यहीं से जा करके. WP दिस इज़ आवर की जो हमने असाइन किया था,
और इसका सिक्योरिटी ग्रुप ये है AWS समथिंग करके। ओपन किया हमने, इनबाउंड में जाकर के चेक करते हैं कौन कौन सा पोर्ट एडेड है। सो वी आर एबल टू फाइंड ओनली 2 डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल, पोर्ट नंबर 80 एंड एन SSH। तो पोर्ट नंबर 80 और SSH दोनों ही ऑप्शन हमारी हेल्प नहीं करेंगे टू क्रिएट अ RDP, क्योंकि RDP के लिए हमें क्या चाहिए, 443 सॉरी 3389। हाँ 3. सो क्लिक एडिट इनबाउंड रोल, एक छोटा सा रोल यानी 3389 का रोल ऐड कर देते हैं। RDP एनीवेयर सेव। एंड नाउ बैक टू द EC2 डैशबोर्ड और कनेक्ट कराते हैं इसको, इंस्टेंस को कनेक्ट कराते हैं। सेम प्रोसीजर, कनेक्ट, गेट पासवर्ड, कीज पेयर WP-की जो हमने डेस्कटॉप पे रखा है, सेलेक्ट योर कीज, डिक्रिप्ट, और इस पासवर्ड को करिए कॉपी। जस्ट नीड टू डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, पासवर्ड इंटर, कंटिन्यू। कौन सा इंस्टेंस हमने बनाया था, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा डिसाइड किया था बैकएंड में, Windows. विंडोज सर्वर 2016, राइट? Correct. अच्छा ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अभी अगर हम बात करें अपने बिन स्टैक के URL की, तो अभी हमें क्या मिल रहा है, दिस इज द आवर पेज, Ctrl+C, और अगर हम इसको किसी दूसरे ब्राउज़र पे भी ओपन करते हैं ना, तो वी आर एबल टू जस्ट गेट ओनली दिस पर्टिकुलर पेज, कि हाँ ठीक है आपका जो सेटअप है वो ओके है, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कोई डेटा नहीं अपलोड किया। इज़ इट करेक्ट? सो बहुत ही बेसिक सा स्टेप अब यूज़ करना है हमें। ओपन दिस PC, desktop, C drive, this one is our folder int pub www root, ये सभी डेटा हमें यहाँ से करना है डिलीट। रिफ्रेश करते हैं पेज को, एक्सेस डिनाइड, क्योंकि आपने जो बैकएंड से डेटा है वो सब हटा दिया, because we are planning to upload our own data, that's why
इसीलिए हमने बैकएंड से सभी डेटा हटा दिया. सो ओपन योर वेबसाइट डेटा, कंट्रोल ए, यहाँ से कॉपी करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कॉपी पेस्ट हो जाता है या नहीं. पेस्ट. जो वेबसाइट हमें हमारी टीम ने हमें प्रोवाइड किया था उसको हम इजीली कॉपी पेस्ट करके ट्रांसफ़र कर देंगे. एक बार पेज को रिफ्रेश करें. हम अपने डेटा तो हमने अपनी तरफ से अपलोड कर दिया. लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द पेज. सेम वेबसाइट मिलने लगी हमें जो हमने डेटा अपलोड किया. जस्ट नीड टू रिफ्रेश द पेज. दिस इज आवर वेबसाइट. इज इट क्लियर? Yes, yes. So now this is all about the bin stack. Please go through the topics जो भी हमने कंप्लीट किया bin stack में. क्या क्या स्टेप फॉलो किया, क्या क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो किया, एक बार गो थ्रू कर लो. इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन और डाउट फिर इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. और अभी ये जो एक्सरसाइज हम लोग किया है ना, उस पे वी हैव ओनली कॉपीड द फ्रंट एंड, मतलब यूआई पार्ट ही कॉपी करके रखा है. उस पे हम लोग वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी डेटाबेस और एनी ऑफ दोस थिंग्स एट दिस पॉइंट. करेक्ट. अभी ये जो अभी अभी हम लोग जो बनाया है वेबसाइट, उसका इमेज कॉपी कैसे निकालना है? इमेज कैसे निकाला, सॉरी? मतलब if I have to make it as a master copy to load it into other instances, नहीं, ये डेटा तो हमारा डेस्कटॉप पे है ना. दिस इज आवर डेस्कटॉप डेटा. करेक्ट करेक्ट. मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर हम लोग वापस we go to that EBS instance जो रन कर रहा है, हाँ. यानी मतलब एक्चुअल वेबसाइट इधर. अच्छा, लोकेशन. तो हाँ, तो वो यहाँ से हम लोग एक ये what you call या वो जो इमेज है ना, वो बना सकते हैं क्या? इस सिस्टम का इमेज क्रिएट किया जा सकता है, यस. बट इन रियल इन्वायरमेंट जब आप मल्टीपल इंस्टेंस जोड़ेंगे ना, तो ये पाथ ना इस्तेमाल करके, अभी हम ये पाथ इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सी ड्राइव में है ना. ये पाथ ना इस्तेमाल करके हम शेयर फोल्डर का पाथ इस्तेमाल करेंगे. क्योंकि शेयर फोल्डर मल्टीपल इंस्टेंस को एक साथ जोड़ सकता है. मीन्स एक शेयर फोल्डर को मल्टीपल इंस्टेंस के साथ हम लोग कनेक्ट करा सकते हैं. And just one more related question. प्लीज. When we talk about this WordPress and all, right? That WordPress can be used only in AWS or can it be used in other service providers like Google? every cloud provider can give us option to configure WP services. सभी देते हैं.
है ना, ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा पॉपुलर है ना कि इसको प्रियोरिटी पे रखते हैं, आप बोल सकते हैं कि इनको प्रियोरिटी पे रखा जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। ओके, क्लियर। मैं I'll try to do some exercise in this practical करके देखता हूँ। अच्छा, पुराने कुछ प्रैक्टिकल आपने कर लिए? वॉल्यूम माउंट एक बार किया था and then I destroyed it. वापस कर सकता हूँ। ओके, नहीं नहीं नहीं, अगर हम इंक्लूड करें इसमें अपने इसको, इन सभी प्रैक्टिकल को, सो वी कंप्लीटेड अप टू मोर देन 10 प्रैक्टिकल्स। इंस्टेंस से स्टार्ट करें अगर, लोड बैलेंसर, EBS, स्नैपशॉट एंड इलास्टिक IP एड्रेस, वर्डप्रेस। सो बिकॉज वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो है प्रैक्टिकल बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं स्टोरेज का पार्ट। कंप्यूट कंप्लीट करके जो भी डाउट होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज वी नीड टू प्रोसीड विद द स्टोरेज। वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ स्टोरेज, देन नेटवर्किंग आ जाएगा। नेटवर्किंग के बाद डेटाबेस आ जाएगा। डेटाबेस के बाद फिर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, जिसमें क्लाउड वॉच, क्लाउड फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, सो डू वन थिंग, टेक 1 आवर फॉर द प्रैक्टिस पर्पज। आप जो भी प्रैक्टिकल है उसको आप इम्प्लीमेंट करो, जितने भी टॉपिक्स किए हैं, एंड कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर? Sure. Yes. Yes. सो एटलीस्ट लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा, तो प्लीज़ स्टार्ट विद लोड बैलेंसर।